Hello बच्चों, today we are going to discuss for the chapter motion. The topics covered in this video are scalar, vector, distance, displacement, velocity, average velocity and acceleration. Now we are going to discuss these topics. Okay. The first topic is scalar and vector quantities. This is very important topic. So we are going to discuss what is a scalar and what is a vector quantity. See what is a scalar quantity. Scalars are quantities that are fully described by a magnitude or by or numerical value alone. That means those quantities are scalar quantities which have only the magnitude, like this. See these all mass, length, distance, speed, power, energy and work. All these quantities have only the magnitude. It doesn't have the direction. इसमें इन क्वांटिटीज में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है. सपोज मास आपको कुछ परचेज करना है, यू आर परचेजिंग 2 kg ऑफ पोटैटोज, तो 2 kg ऑफ पोटैटोज का कोई डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन तो होगा नहीं ना. इट हैज़ ओनली द मैग्नीट्यूड. दैट्स वाई दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज. ओके. नाउ इन वेक्टर क्वांटिटीज, then vectors are quantities that are fully described by both a magnitude as and a direction. That means those quantities which have the magnitude as well as direction, those quantities are known as the vector quantities. Here you can see all these quantities are the vector quantities, like displacement, velocity, acceleration, force, weight, friction, moments. Okay. See, in previous class you have discussed speed, and see today you are going to discuss velocity. So what is the major difference? The speed has only magnitude, and when a speed has a direction, that time this speed is known as the velocity. Okay. Move to the next slide. Yes. Now next is very important. This topic is also very important. What is the distance and displacement? And you know, one major difference is that the distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Okay. Now first we will discuss for the distance. See, distance is the total movement of an object without any regards to direction. We can define distance as to how much ground an object has covered despite its starting or ending point. That means the actual distance covered by the object is known as the distance. It does not have any direction. Okay. We have total all the distance covered on the ground. Okay. Now what is the displacement? See, displacement is defined as the change in position of an object. Okay. It is a vector quantity and has a direction and magnitude. That means the major difference is that distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. With this example you can understand very well what is the distance and what is the displacement. See, this man wants to move to his home. इस आदमी को इस अपने घर जाना है. he has two path. देखो, एक तो ऐसे यहाँ पे ये इस तरीके से मूव करके और अपने घर जा सकता है, और वन जो है एक जो डायरेक्शन है एक और तरीके से ये सीधे यहाँ से यहाँ जा सकता है. तो दिस टाइम इट इज ऑन दिस पॉइंट. सपोज कर लो ये पॉइंट क्या है, ए है, ए पॉइंट पे है यहाँ पर, और वो बी पॉइंट इस ट्री के पास में, और फिर सी पॉइंट ये अपने होम पे पहुँचता है. तो ए बी सी पाथ को अगर कवर करता है तो दैट मीन्स इट इज गोइंग विद द डिस्टेंस. तो देखो ये पूरा जो लेंथ होगा ए से बी और बी से सी का, दिस इज नोन एज द डिस्टेंस.
और अगर हम लोग केवल जो इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो चलना शुरू करता है और जहाँ उसका घर है उसके बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग डायरेक्टली ये ले लेते हैं तो दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, दैट मीन्स इट हैज़ अ डायरेक्शन. देखो वो सीधे अपने घर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑल्सो. बट यहाँ पे तो डायरेक्शन सेम है नहीं, पहले वो ऐसे गया फिर ऐसे गया, दैट मीन्स दिस टाइम इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. तो डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस मैन इज 5 मीटर एंड जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर, ये यहाँ का लेंथ हो गया एंड 3 मीटर यहाँ का हो गया, तो टोटल डिस्टेंस इज 7 मीटर. तो नाउ यू कैन अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, yes, now this is very important topic कि what is the velocity. speed और velocity में अक्सर confusion होता है कि वो दोनों में क्या ऐसा difference है. तो see, both are the same but one big difference is कि speed has only the magnitude, it doesn't have any direction. But speed with direction, see, yes, speed with direction, see, speed with direction is known as the velocity. That means when any speed with direction, then this time we know that this quantity is a velocity. So how we can define it? See, the rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. The quantity that specifies both these aspects is called velocity. That means कि जब किसी स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन को भी डिफाइन कर देते हैं, दैट टाइम वी कैन से इट इज अ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफाइंड डायरेक्शन. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल. तो जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो सकता है. यूनिफॉर्म समझ रहे हो ना, कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा. और वेरिएबल मीन्स हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा ना. इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ. सी, वेलोसिटी किन किन चीज़ों से चेंज हो सकता है. वेलोसिटी देखो, पहले तो स्पीड चेंज कर दो, मींस जो उसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर दो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. जो डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन चेंज कर देते हैं दैट टाइम द वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. या दोनों के चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी. इट इज द सेम फॉर्मूला बट दिस टाइम you will use the displacement for the velocity. See, this first formula is speed equal to distance upon time. This time we are taking distance because distance is a scalar quantity. But in the formula for the velocity, v is equal to s upon t. That here s is the displacement of the object, na, and we know that displacement has the direction. तो जब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा तो हमारे जो स्पीड में उसमें भी क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा. दिस टाइम वी कैन से दैट दिस स्पीड इज अ वेलोसिटी बिकॉज स्पीड हैज अ डायरेक्शन ऑल्सो ना. तो फॉर्मूला इज नियरली सेम बट वन बिग डिफरेंस इज दैट कि जो स्पीड होता है इसमें हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं, लेंथ को डिस्टेंस में मेजर करते हैं, और जब हम इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं दिस टाइम वी आर यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट. ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, एवरेज वेलोसिटी. इन प्रीवियस lectures you have learnt about the average speed. This time we are going to discuss the average velocity. See, what is average velocity? When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of वेरिएबल वेलोसिटी. ठीक है, जैसे पिछली बार स्पीड को आपने एवरेज स्पीड को पढ़ा था तो बताया गया था पॉइंट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो एक वो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में अलग अलग डिस्टेंस और टाइम से चल रहा था. तो इफ़ वी वांट टू फाइंड द एवरेज स्पीड तो सभी का टोटल डिस्टेंस निकाला था, टोटल टाइम निकाला था. सेम थिंग वी कैन डू हियर ऑल्सो. इट इज़
calculated in the same way as we calculate the average speed. In case the velocity of the object is changing at the uniform rate, the average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of the time, that is average velocity, that is yes हाँ, तो that is average velocity is initial velocity plus final velocity divided by 2, or mathematically we can write average velocity is equal to u plus v by 2, where u is the initial velocity and v is the final velocity. Okay, by using this formula we can also get the average velocity. अगर आपको initial velocity पता है किसी ऑब्जेक्ट की और final velocity पता है, और आपको उस दोनों पॉइंट के बीच में सपोज कर लो पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी u है और पॉइंट बी पे इनिशियल वेलोसिटी v है, और आपको इस पूरे ड्यूरेशन का एवरेज वेलोसिटी चाहिए होगा, तो यू कैन फाइंड द अर्थमेटिक मीन, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी plus final velocity divided by 2, then you will get the average speed. Okay, yes, this topic is rate of change of velocity, है ना. जैसे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जब स्पीड को डिफाइन करना था तो आपने बोला था कि मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए आपने टर्म लिया था, क्या टर्म लिया था, स्पीड. तो दिस टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो दिस टर्म इज नोन एज द एक्सेलरेशन. सी, दिस टर्म इज नोन एज द एक्सेलरेशन. तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस. सी, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line, है ना, क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line the velocity remains constant with time. तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना. जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो दिस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. हाँ, constant with time. In this case the change in velocity of the object for any time interval is zero. तो यहाँ पे जो change in velocity हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा. That means we can say that acceleration for this type of velocity is zero, क्योंकि वहाँ पे जो velocity है ना तो increase हो रही है ना तो decrease हो रही है, तो that means acceleration उसका क्या है, zero है, and we can say that the velocity is constant. However, in non-uniform motion, अब सपोज कर लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो अब क्या होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. तो however in the non-uniform motion velocity varies with time. It has different values at different instants and different points of the path. Thus the change in velocity of the object during any time interval is not zero. तो यहाँ पे देखो जो change in velocity होगा वो जीरो नहीं होगा. That means this time the object is accelerated ना, उसका मोशन क्या हो रहा होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है. दैट मीन्स अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन वहां पर हमको मिलेगा. तो वो हाउ वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट. सी, now we have to introduce another physical quantity called acceleration, which is a measure of the change in the velocity of an object per unit time. That is कि acceleration क्या है, acceleration is the rate of change of velocity. तो the value of acceleration is equal to change in velocity per unit time. Okay, see, we have one formula, this formula. तो क्या है इसमें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो ये जो टाइम है, अगर ये टाइम आपका यूनिट होगा तो दैट टाइम द एक्सेलरेशन विल इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम. ओके, in next part we are going to continue this topic, acceleration. See,
if the velocity of an object changes from an initial value u to final value v. सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था और आफ्टर टाइम t जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, v हो गई ना. तो देन द एक्सेलरेशन is a is equal to v minus u by t. This is the formula for the acceleration when any object is changing the velocity from u to v within time t. This kind of motion is known as accelerated motion. The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of the velocity and negative when it is opposite to the direction of the velocity. The SI unit of the acceleration is meter per second square. Okay, see, by using this formula we can find the acceleration of the body. Okay, now here one thing is discussed, that positive and negative acceleration ना. तो सी कर सपोज कर लो कि कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मोशन जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में है और जो एक्सेलरेशन है वो भी सेम ही डायरेक्शन में है. तो दिस टाइम दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना. सिंपली इसको हम लोग एक्सेलरेशन ही बोल सकते हैं. लेकिन तो इस टाइम में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी ना. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा. तो देखो जब बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है और हम लोग का जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो दैट मीन्स ये बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना. तो दिस टाइम वी गेट द नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही आप रिटार्डेशन भी बोलते हो. ठीक है, तो देन व्हेन यू विल गेट द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इट इज नॉर्मली इट इज एक्सेलरेटेड बॉडी, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन में इसको रिटार्डेशन भी हम लोग बोलते हैं. और इस टाइम जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी. ओके, now one more topic is left, it is uniform and non-uniform acceleration. See, just we have discussed that acceleration. तो एक्सेलरेशन के साथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग आप समझ सकते हो. यूनिफॉर्म क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट जो है वो चेंज हो रहा हो. तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है दैट इज दिस इज नोन एज द यूनिफॉर्म. एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट चेंज हो रहा हो, that is known as the non-uniform motion. So same thing we can understood for this also. If an object travel in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, ठीक है. तो जो velocity है ऑब्जेक्ट की वो equal interval of time में वो same amount of the velocity increase हो रहा हो या decrease हो रहा हो, then the acceleration of the object is said to be uniform. The motion of a freely falling body is an example of uniform accelerated motion. सपोज कर लो कोई बॉडी है और उसको आप फ्रीली ऐसे नीचे की तरफ छोड़ देते हो, नीचे आता है. तो जब बॉडी नीचे की तरफ आता है तो ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी जो बॉडी है वो कैसा मोशन करती है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन करती है. यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है. ओके, on another side, on the other hand, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at non-uniform rate, है ना. For example, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amount in equal interval of time, then the car is said to be moving with a non-uniform acceleration. ना जैसे कार अगर रोड पे चल रही है तो एक इक्वल अमाउंट में तो उसकी वेलोसिटी नहीं इंक्रीज होती है ना. सपोज कर लो फर्स्ट स्टेप में उसका जो स्पीड है वो कितना इंक्रीज हुआ, 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज हुआ. नेक्स्ट में वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड और बढ़ा लिया. तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो स्पीड जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, वो डिफरेंट हो रही है ना. तो दिस टाइम वी कैन से दैट दिस कार इज मूविंग विथ non-uniform acceleration. Okay, in next class
Part 4, you will do the numericals based on distance, displacement, average velocity and acceleration. These numericals are very very important. Then रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज अगर आप लोग ये सारे टॉपिक्स जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, देन ईजी होगा, है ना। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग इन टॉपिक्स पे करने वाले हैं तो यू कैन गेट इट ईजिली। ओके, थैंक यू।